एक बड़ी legit बात बताऊं, this hair need to be washed. This hair needs major washing. I have so many options to use when it comes to shampoos and conditioners. लेकिन बचपन से लेकर अब तक nothing has worked like Sunsilk for my hair. So this is the one that I'm going to be using today. Look at what I have done today. I've taken out this very प्यारा सा pink जोड़ा with white lowers to wear today. आज चांद कहाँ से निकला है bro? I just got done washing my hair and blow drying them a little bit. And yes, आज जो mood था शलवार कमीज पहनने का वो भी पूरा हो ही गया. So my hair feel like a mess, इसलिए मैं थोड़ा सा ये nourishing oil लगाऊंगी अपने बालों में so that they can look like their hair rather than looking like bhusa, because that's what they look like right now. I like nice shiny hair. और हाँ, मैं soon आप लोगों से अपनी hair care routine भी follow करूँगी, although I do not follow it very religiously, but I will follow that. I will tell you guys that this is what I do when I do follow a hair care routine, which is good enough to last you 1 whole month. You don't have to keep doing it all the time. That's the best part. I know I look like a booth, but this will give some volume to my hair. That is what I like and appreciate. Yes. Done. That is what this kurta looks like. I really love the fact that it's nice, cozy and pink. आज मेरा बहुत ज़ोर से दिल कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा पहन लूँ, बस रैंडमली बस ऐसे ही पहन लूँ. सो रियल लाइफ में मेकअप कभी भी ग्लैम नहीं होता, ठीक है? Like you never go all glam, look all nice looking your makeup. This is how I do my makeup in real life. Yes. So I'm just going to moisturize my face because I just wanted to go out, meet some friends, feel a little good. Because 2-3 दिन से इतना कोई next level काम कर रही हूँ मैं कि मैं पागल हो गई हूँ, ठीक है? I need a break and this is what my break is going to be. मुझे याद है मैं पहले कितनी ज़्यादा शलवार कमीज़ पहना करती थी और मैंने लिटरली ख़त्म कर दी पहनना जस्ट बिकॉज मतलब आई यूज़ टू फील लाइक आई लुक ओवरवेट इन इट. और आपकी जो फैमिली होती है वो आपको कभी भी पॉजिटिव रहने नहीं देती आपके बॉडी इमेज के बारे में. देन आई स्टार्टेड वेयरिंग जीन्स एंड टी शर्ट्स क्योंकि उसमें आपका बॉडी शेप इतना प्रोमिनेंट होता ही नहीं है. सो आई स्टार्टेड फीलिंग वे मोर कम्फर्टेबल जस्ट डूइंग दैट. So you know what? I really wanted to tell you girls something which is very important for all of you out there, because in our society and in our families, no matter where we live, honestly, body shaming is a really big thing and it affects all of us mentally. तो you know what? जो मर्जी दिल करता है ना पहनो. अगर आपको अच्छा लगता है, if you like it from your heart and you feel like you can carry it ना, it doesn't matter what size you are. You will make it look good and other people will come to you and ask you कि यार मैं तो ये चीज़ कभी नहीं कैरी कर सकती, how did you carry this? क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है. So just imagine man, people come up to me and ask me कि how did you carry this dress? I mean हमें तो इतना ये हुआ वो हुआ इस ड्रेस के ऊपर और हम तो कभी नहीं कैरी कर सकते. मैंने भी ये सारी बातें सुनी हुई और सोची हुई हैं. I also never thought that कोई एक ऐसा ड्रेस जो कि बहुत पतले लोग पहनते हैं वो मैं पहन के कभी अच्छी लग सकती थी. बट देन बिकॉज आई फील गुड इन इट, आई लुक गुड इन इट. दैट्स ऑल यू रियली नीड इन योर लाइफ. डू व्हाट यू लव. एंड ऑनेस्टली बॉडी शेमिंग तो छोड़ो, पीपल डोंट रियली सपोर्ट यू इन एनी डिसीजन दैट यू मेक. चाहे वो काम के बारे में हो, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, चाहे वो ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी क्यों ना हो. पीपल आर नेवर गोइंग टू सपोर्ट यू इन वॉट यू वॉन्ट टू डू ever. So अगर people pleaser बनना है, लोगों को खुश करना है, कर लो, देख लो how far that takes you. But you know what I've learned in all of these years in my life? पहले मैं बहुत people pleaser थी, यानी कि अगर किसी का mood मेरे से ख़राब हो गया तो I couldn't have been able to sleep all night. Imagine मुझे इतना फ़र्क पड़ता था कि कोई मुझसे खुश है या नाराज़ है या मैंने किसी को upset तो नहीं कर दिया. So I used to live my life however people wanted me to live my life. And that was the worst thing that I could have done क्योंकि I started realizing this later in my life कि मैं कुछ भी कर लूँगी ना, कुछ भी.
देयर विल ऑलवेज बी दिस वन पर्सन जिसको मेरी ख्वाहिशात से रजामंदी नहीं होगी या जो मेरे तरीक़ों को सही नहीं समझेगा. इज़ दैट समथिंग दैट आई वांट टू कीप डूइंग इन माई लाइफ, कि लिविंग माई लाइफ ऑन अ लूप अगेन एंड अगेन एवरी डे just to make other people happy, not even caring is that thing making me happy or not. So that is when I thought कि यार it's time to change the ways of your life, because you're growing up and this is something that you learn as you grow up. Honestly बताऊँ तो मेरे दिल में इतनी सारी बातें होती हैं जो मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से करूँ, because since I started this vlogging channel I feel closer to you guys than I ever did in the past, because वो obviously tutorial videos होती थी, उसमें I could only talk to the point, ज़्यादा बातें नहीं कर सकती थी, and that is why I made this channel, ताकि I can feel like I am your friend and you guys are my friend. और आप लोगों ने जितना लव दे दिया ना इस एक चैनल पे, मेरा तो दिमाग burst हो गया कि क्या, and you guys actually feel like family to me now and there's no joke about it. Imagine यार, you guys are so nice to me. Okay, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ that wherever you guys are, wherever you're watching me, you just feel happy. इतनी late realization आई मुझे इस बात की that I cannot make everybody happy, कि मैं क्या बताऊँ, because running a YouTube channel on top of that, there were always people telling me to do this, you know, in a certain way. जैसे कि अगर एक simple सी बात बोल दूँ कि उर्दू में बात करो, इंग्लिश में क्यों बातें करती हो, या फिर सर पे दुपट्टा क्यों नहीं पहनती, नेल पॉलिश क्यों नहीं लगाई हुई, तुम नेल पॉलिश क्यों लगाई हुई है तो नमाज हो, नेल पॉलिश क्यों लगाई हुई है तो नमाज नहीं करती, तो ये नहीं करती, वो नहीं करती. मतलब एक जान है और इतनी सारी चीज़ें, एंड यू कैन नॉट कीप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ टू एवरीबडी कि भाई मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वो भी करती हूँ, मेरी ज़िंदगी सिर्फ वो नहीं है जो मैं कैमरा पे बता रही हूँ, यू डोंट नो मी. और ये सारी बातें इतनी क्लीशेड हैं कि करने का दिल भी नहीं चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो. तो आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू, एंड थिंग्स दैट माय फैमिली डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद. बाय फैमिली आई मीन द पीपल हु लिव इन माय हाउस, बिकॉज दीज पीपल मैटर. लेकिन इसमें भी ऑनेस्टली एक बात बताऊँ तो काफ़ी डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है आपको, बिकॉज बहुत दफ़ा आप उनको भी नहीं खुश कर पाते. खैर, दैट वाज माय मोटिवेशनल टेड टॉक टिल आई गॉट रेडी. सैडली मेरा मेकअप बहुत कम देर का था, सो नाउ आई एम गोना गो. आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट शॉट. बाय. Are the shoes that I have matched with this outfit right here, and I think they look pretty cute. I like the outfit. This looks nice. So I've just paired this up with this very very pretty looking dupatta. So pyara. You wanna see the borders? Look, so pretty. And I am ready. So today is my cheat day, okay? It's Thursday और मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या खाना है. ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल है ये. मतलब आपको भूख भी लग रही है, आपको कुछ बाहर का भी खाना है, फिर जितने ऑप्शंस आएंगे, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, एंड ऑल ऑफ द आंसर्स विल बी नहीं नहीं नहीं. तो बंदा खाए क्या? अब मैं क्या खाऊं? बाहर तो आ गई हूँ मैं, वो व्हाट विल आई हैव टू ईट. प्लस फिर आप लोगों ने व्लॉग्स की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर दी कि आई हैव गॉटन सो नर्वस. मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या शूट करूं, और इफ़ व्हाट आई एम शूटिंग इज़ इवन वर्थ अपलोडिंग और नॉट. इमेजिन. और आज मैं लिटरली इतना मैंने काम किया ना, मैंने सारे PRs अनबॉक्स किए जो अभी के थे ना, जितने, ऑल ऑफ देम. एंड आई एम थिंकिंग कि मेरा आज का दिन सिर्फ इनको ऑर्गेनाइज करने में निकलेगा, बिकॉज देर सो मैनी, एंड शायद हमें आज चांस मिल जाए टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज दैट ज्वेलरी ड्रॉर दैट्स बिन वेटिंग ऑन मी टू ऑर्गेनाइज इट सिंस गॉड नोज व्हेन. बुड्ढा हो गया वो ड्रॉर. लिटरली सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए, सारे. यहाँ पर टेक्सास चिकन है, स्विंग्स है, नैंडोज है, हाउडी है, फेमस ओज है, कोको 9 है. किसी चीज़ का मूड नहीं हो रहा मेरा. और अभी पता है मुझे क्या क्लिक हुआ है कि मुझे खाना है हनीफिया. हनीफिया के बीफ बर्गर्स खाने. हंटर बीफ बर्गर्स, दे आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस बर्गर्स इन कराची. ठीक है, अगर आप कराची आए और आपको हंटर बीफ पसंद है ना, बस हनीफिया के हंटर बीफ बर्गर्स, दे आर दी बेस्ट, दी बेस्ट. सो राइट नाउ वी आर एट खड्डा मार्केट फूड स्ट्रीट looking for हनीफिया. तनी कहाँ है हनीफिया? Where are you हनीफिया? और अब यहाँ पर ढूंढ रहे हैं हनीफिया. 3 दिन में लेट हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्योंकि 4 दिन लेट हो जाए, 5 दिन लेट हो जाए. सुनो कॉन्वर्सेशन सुनो. This is literally heaven on earth after KFC.
Red apple. Hot and spicy or red apple, I can never choose because I love red apple ke rolls as well. And where is Hanifia? अभी तक नहीं मिला मुझे Hanifia. Still looking for it. Hi, all these places in Ramzan. जो लोग बाद में देखेंगे अगर ये vlog, इतनी भूखे लगेंगी सबको, खुशबुएं आएंगी प्रॉपर रोल्स की और सब की. And this is Bombay. You can get all the amazing chocolates and all over here. And there is Hanifia. बंद है? Hanifia बंद है. No. क्या हुआ? ये तो Hanifia बंद हो गया. अब क्या खाऊं? यहाँ पे हॉट एंड स्पाइसी भी है फॉर एन ऑप्शन एंड रेड एप्पल भी है फॉर रोल्स. लेकिन एक महंगा ऑप्शन भी है टू हैव हनीफिया वाले बर्गर्स, बट दैट इज महंगे वाले हनीफिया के बर्गर्स एट ईजी. मैंने ट्राई किए तो बहुत अच्छे थे. मुझे खाना हनीफिया ही है. क्यों बंद हुआ है? रेड एप्पल मतलब रोल्स या हनीफिया बर्गर्स? हनीफिया बर्गर्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू ईजी इंस्टेड. जैसे यहाँ पे हे पिताजी भी हैं, दो भी है. पिताजी या दो क्या खाना है? मुझे तो इजी खाना है. मेनू तो जाना है इजी द कोल, इजी जाना है इजी द कोल. ये रहा इजी, ये रहा ब्यूटीफुल. मैंने आज सोचा जरा अच्छा कराची का प्रॉपर खाना खाएंगे, कुछ करेंगे. एंड आखिर में हम आए इधर ही सारे ये बूजी इजीनेस पे. देखो एंड वी आर हियर एट इजी. नाउ वी आर हियर एट इजी. And there are so many options to choose from. Oh my god. Oh my god. जहाँ भी चले जाओ, you're always sitting behind a truck or something or on the road. अच्छा, एक ये बाउ स्लाइडर्स कर दें ट्रिपलेट्स और बफेलो चिकन चीज विंग्स. Oh, fries. Drink. I will also have a drink. Oh, मैंने इनका एक बहुत मज़े की चीज़ ट्राई की थी वैसे. I remember. क्या थी वो? इनके ड्रिंक्स का है इसमें. आपका मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉबेरी लेमनेड है. रोज लेमनेड. आई वांट टू हैव द रोज लेमनेड. इट्स लाइक रूह अफ़ज़ा लेमनेड. रोज लेमनेड. आई एम सो एम्बैरेसिंग. आई डोंट नो हाउ टू एक्ट एनीवेयर. टेस्टिंग. सो आई जस्ट चेंज्ड माय बैकग्राउंड ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा तो ढंग का बैकग्राउंड आए. आई मीन कम ऑन. आई मीन अगर हनीफिया पे सच में गई हुई होती तो फिर वो बैकग्राउंड सही था, बट अभी नहीं. सो बाय द वे, ईजी इज़ रियली वेल नोन फॉर देयर डोनट्स. एंड बिकॉज आई एम नॉट सच अ मीठा पर्सन, आई एम जस्ट नॉट. आई हैव नेवर ट्राइड देम. इमेजिन लोग इस्लामाबाद, लाहौर, इन सब जगहों से आते हैं टू ट्राई देयर डोनट्स एंड आई हैव नेवर ट्राइड देम. बट शायद आज मैं ट्राई करूँ. और अभी जो मैंने ऑर्डर किए सारे बर्गर्स, आई एम सो एक्साइटेड टू हैव देम. I've earned it, okay? So I'll just show you guys what they look like, by the way, in the next clip. Just realized I'm such a creep. मैं कितनी बातें कर सकती हूँ. पता है कितने लोग बैठे हुए मेरे इर्द गिर्द? मैं पीछे दिखाऊंगी नहीं, but let me tell you, बहुत लोग बैठे हुए मेरे पीछे. कूल वाले. मैं कूल नहीं है, वो बहुत कूल है. ये जगह भी बहुत कूल है, बट मैं कूल नहीं है. फिर भी मैं यहाँ पे आके ब्लॉग कर रही हूँ. कूल नहीं है मैं, ठीक है? कूल बिल्कुल नहीं है. All the yummies that I was talking about. Closer look, guys. If these aren't tempting, what is? Even this right here, yummy, guys. Take a look at how yummy these look. Oh my god. The sauce and the fries. And these yums right here are the easy burgers. I'm sorry if any one of you is watching while you guys are fasting because, you know, small burgers, like 4 bite burgers or something, you can see, but they look really nice. And this is what the rose lemonade looks like. So yummy to see. Oh my god. And so pretty pink. I'm matching with it. Hello, so I'm finally back home and I know कि अब Tao would want me to configure his phones क्योंकि उन्होंने नए phones लिए and he's just too excited. So I'm probably gonna go do that today. And I think कि आज सहरी तक मेरा टाइम जो गुजरेगा वो मेरे सारे PR पैकेजेस को संभालते हुए गुजरेगा. Such a tough task. Nobody can understand how tough that really is. You guys expect me to keep my room clean? Really? I mean, not just my room. Every part of my house is dirty. Look at that. This is Dadi's main drawing room. Imagine how angry she must feel when she looks at this. अगर मैं क्या करूँ? संभालना is not an easy job. It takes a lot of time.
हेलो, आ गई मैं, बहुत इंतजार कर रहा था। आ गई मैं। बड़ा है बैग में। नहीं है। एक ही साइड। या अच्छा अच्छा। एंड यू नो द फनी थिंग इज दिस कि मेरा जो एटीट्यूड होता है ना वो मेरे कपड़ों के साथ बदल जाता है. सो व्हेन आई एम इन माय नॉर्मल टी शर्टी क्लोथ्स ना, आई एम वेरी कैजुअल एंड मैं मजाक मारूंगी, बहुत चिलिंग करूंगी. व्हेन आई एम लाइक दिस आई सिट डिफरेंटली, आई टॉक डिफरेंटली, आई ईट डिफरेंटली. सो वियर्ड, इसलिए मैं ये नहीं करती. Tao also got himself an iPhone Pro Max. Hello, it's finally Bhangi and night suit time in Glossip's room right now. Fatma's room, by the way. Glossip's glam wali, जो यहाँ नहीं आती. Channel पे it's only Fatma, who is this person in night suits, repeating black clothes every day. Achha, so I have to go and fix the real ugliness over here, which is pick all of these things up and then load them over here. It is time to load this thing right here. I have to load it. First of all, my PR Tokra. This is what loads most of my stuff. And then टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी समझाना इट्स सो टफ. माई दादी लिटरली स्क्रीम्स एट मी एंड सेज व्हाट्सएप खोल के दे, व्हाट्सएप. मैं उनको व्हाट्सएप खोल के दे देती हूँ. चीज़ है व्हाट्सएप. आई एम लाइक मम्मा ये व्हाट्सएप ही खोला. चीज़ है व्हाट्सएप खोल के दे, जिस पर गाड़ी मंगाते हैं. एंड आई एम जस्ट लाइक मम्मा वो ऊबर है. हाँ, व्हाट्सएप पे ऊबर खोल के दे. Finally, सत्यानाश. Organize all of this. I know I'm not excited to organize all this. I have to do this every other day. जगह नहीं है अब मेरे पास to be able to do this. Time to empty this one right here. Oh. So I'm just going to keep this in, no, not in this drawer, in my skincare drawer. By the way, my main skincare drawer is different than my side table skincare drawer. These are the products that I reach out to all the time. So if you ever want me to make a video on my side table skincare drawer, I will do that. आजकल मेरे पूरे दिन इस तरह से गुजर रहे कि मेरा दिन कहाँ निकलता है मुझे पता भी नहीं चलता. मैं उठती हूँ, no wait, अब तो मेरा दिन इस तरह चल रहा होता है ना. मैं उठती हूँ, मैं व्लॉग कर रही होती हूँ. मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं व्लॉग कर रही होती हूँ. मैं इफ्तारी बनाती हूँ, मैं व्लॉग कर रही होती हूँ. मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ, मैं व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ. फिर मैं एक और नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं व्लॉग अपलोड कर रही होती हूँ. फिर मैं अपना टाइम गुजारती हूँ, थोड़ा सा काम वाम करती हूँ. उतनी देर में भी बीच बीच में कहीं ना कहीं व्लॉगिंग हो रही होती है. सहरी बनानी पड़ जाती है. एंड देन अगेन आई गो टू स्लीप. तो इस तरह का तो मेरा दिन गुजर रहा है. सो how do I even make time for anything else? It's impossible.
People who vlog every day, God knows how they do it यार. And then you guys expect कि मेरा कमरा साफ होगा. होगा तो कैसे होगा? How do you expect my room to be clean? It's again a mess. Again! I cleaned it like yesterday and it's a mess again. There's an extra trolley in my room. Look at it. ये रही. There's an extra trolley in my room. Vanity तो मुझे साफ करने का मौका ही नहीं मिला था. I don't know what to do really. बस मुझे इसके लिए ना आराम से एक हफ्ता ऑफ चाहिए ताकि मैं घर बैठी रहूँ, मैं ये सारे काम वाम कर लूँ सुकून से और बस अपनी पूरी ज़िंदगी थोड़ी सी सॉर्ट आउट कर लूँ. मुझे सिर्फ ये चाहिए. बाय द वे आज मैंने जो बाल धो लिए हैं, क्या शाइनी शाइनी सिल्की सिल्की हो गए मेरे बाल. I think I should wash them more often. And no, I don't wash my hair more often. I don't wash my hair often. I only wash my hair once every 4 days. That is one of the biggest secrets of my hair health, by the way. I take a bath every day. Okay, I just don't wash my hair every day, and I never brush my hair. Sounds like messy girl stuff, but trust me, that is what keeps your hair health to a max. Google it if you want to. अब मेरे कमरे का कोई कोना ऐसा नहीं है जो साफ सुथरा हो. So I can't even think of finding a corner that is clean or does not have something inappropriate lying in the back because you guys then comment and tell me फला पड़ा हुआ था पीछे. कमरा है मेरा, पड़ा ही होगा ना कुछ ना कुछ. It's a ladies' room, obviously. लेकिन I cannot do anything now. I'm so done. I just want to relax, wash my face, put on a face mask, and just go to sleep later. I even have a face mask that matches my shirt today, by the way. हाँ कुछ ना कुछ तो गिरेगा. Clothes. And it looks so cute. मैंने इनका हाइड्रा बॉम्ब या हाइड्रो बूस्ट, हाइड्रो बॉम्ब वाला ब्लू वाला गार्नियर का यूज़ किया था फेस मास्क and it was so good. It was one of the best face masks that I've ever used and I was like, yeah. So I just washed my face now and I finally turned the air conditioner on और थोड़ा सा सुकून मिला है. And I want to put on this mask right here. What does it say? He's smooth after 1 week. Skin is radiant and glowing. Dark spots are lightened. अभी एक हफ्ते की बात बहुत दूर है. Let's just try this one for now. This is actually something very milky inside. आ जाओ मेरे दूध मक्खन मलाई वाले मास्क. And smells good too. I won't be saying anything much, okay? Because now it's my relaxing time. So I finally took the mask off. I'm just giving my skin like a very soft rinse क्योंकि ये बहुत मिल्की वाइट कलर का था. So a nice rinse would be good. काफ़ी heavy product था इस mask के ऊपर. And you know what? My skin actually feels very smooth through the touch. So I can definitely feel that my skin feels really soft. But इसका खैर अब इस्तेमाल मुझे ज़्यादा टाइम्स में ही पता चलेगा. I cannot just find that out instantly. लेकिन it's a good first impression. Oh my god, my hyaluronic acid is literally ending. So आज का जो स्किन केयर रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो मास्क लगाया था that was for brightening and make the appearance of the dark spots go away. So जब मैं ऐसा कोई मास्क यूज़ करती हूँ I follow the entire brightening routine so that it works. So let me show you. Hyaluronic acid तो मस्त है ना. हाइलुरोनिक एसिड के बगैर तो मेरा कोई स्किन केयर ख़त्म होता ही नहीं है. तो अभी आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द ला रोशे पोजे एफक्लार डुओ. इतना मुश्किल नाम है इसका, ऐसा लगता है कि कोई पश्तो इंसान
इतना मुश्किल नाम है कि ऐसा लगता है कोई पठान पश्तो बोल रहा है. ए जाकिरा सड़ा खूबर उड़ा जरजर एंड देन इट साउंड्स लाइक ला रोशे पोसे फकला डुओ जरजर पख पख. You know, it sounds like that. I'm just going to apply some here, some here. Now I'm going to mix it up in my skin. When I use products for brightening, I never use niacinamide on top because vitamin C अगर किसी product में होता है तो niacinamide instantly reacts with it. So आज PR में I got this very cute superfoods का moisturizer. It's by Sweet Chef. You know, cute सा चुन्नू सा, and then it was also matching with my dress. So I'm just going to use this one. इस पे लिखा हुआ है it hydrates, soothes and brightens. वैसे तो जो भी ब्राइटनिंग स्किन केयर होता है वो आपको सुबह में करना चाहिए, लेकिन हमारी सुबह कहाँ होती है, ये हमारी सुबह ही है रमज़ान में. फॉर द लिप्स आई एम गोइंग टू बी यूजिंग माई फेवरेट इजिप्शियन मैजिक. यार मेरा कोई इतना बुरा हाल हुआ था पता है, माई होंट सूजो फाइट टू अ लेवल के मैं बता नहीं सकती. एंड मेरे अंदर ना एक बहुत नेक्स्ट लेवल खारिश है. आई गो एंड आई जस्ट गूगल वाई इज़ माई लिप सो सोलन दैट इट फील्स नम. गूगल जो चीज़ करो उसका जवाब क्या होता है? डू यू गाइज नो? इट सेज यू हैव कैंसर. आई क्राइड ऑल नाइट. यू कैन जज माई स्किन बेटर फ्रॉम दिस लाइट. आई एम सुपर एग्जॉस्टेड एंड नेक्स्ट लेवल टायर्ड. मैंने रमज़ान के पहले दिन ग्रोसरी की थी, अब ख़त्म हो चुकी है. सो आई हैव टू गो फॉर राउंड 2, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही, इसलिए वीटाविक्स पे गुजारे और वाटरमेलन्स पे गुजारे. अल्लाह ताला ने बना बनाया भेजा है वो सब, सो आई कैन जस्ट हैव इट. नहीं, वीटाविक्स मैन मेड आई नो इट, बट फिर भी बना बनाया तो है ना. ओके ब्रोज, भूख लगी गई है मगर हिम्मत अभी भी ज़ीरो है. सो आई एम प्रॉब्ली गोना मेक माई सेल्फ एग्स. Here's Bubu complaining about the fact that the maid did not clean her room for 8 days. तो तुम टिप दिया करो उसको. इतने तुम्हारे पास सामान आता है, हमें गिव अवे क्यों नहीं दे देती? गिव अवे दे दे, हमें गिव अवे दे दे, दे गिव अवे. So I added some natural shredded cheese to this one. This is natural mozzarella cheese, by the way. Yummy cheese omelette. मेरा अंडा जल जाएगा. My अंडा will burn. वो प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो. इतनी बेइज्जती होगी ना अगर दादी को स्मेल आ गई. प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो. And it is done. Yay! मेरी फुल सादा सी इफ्तारी होने लगी है. ये मेरा टोस्ट है. This cheese is not mine. This sliced cheese. यहाँ बुबू का थंडर फिले पक रहा है. ये देखें एयर फ्रायर में फुल मिर्चियों की खुशबुएं आ रही है मज़े मज़े. थंडर फिले खा लूँ ना तो मुझे तो ऐसी एसिडिटी हो जाए कि मैं उठ भी ना पाऊँ, चोक हो जाऊँ मैं. सो जाओ. Thank you. My nashta is ready. Aisha wants me to get out of the kitchen so she can just freely make her own unhealthy nashta. और गंदी शक्ल बनाओ, मैं तुम्हारा लिटरली थंबनेल लगा दूंगी इसी शक्ल का. You know I can do that. Bye. Good night. Masari. So let me show you guys what it looks like from inside. Because this cheese is शोर मचा दिया तो हमारी जो हालत होनी है, यू गाइस हैव नो आइडिया. सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ना करते सहरी है, मैं कर गई. प्लीज अल्लाह, आई एम सच अ मेली. व्हाट्स रॉन्ग विद मी रियली. अच्छा बस अब मैं जा रही हूँ अपनी सहरी खाने. आप लोग अपनी सहरी एंजॉय करें. बाय बाय. यू नो इन रमज़ान बहुत मीठे की क्रेविंग होती है, ऑल्दो आई एम नॉट समवन हु ईट्स मीठा. सो आई जस्ट गॉट माई सेल्फ अ फ्यू ड्राई फ्रूट्स और मैं अभी इनको एक साथ जमा करके रख दूँगी so that I can snack on these when I feel hungry. But obviously dry fruits are also pretty high in calories, so you should only have like a handful maximum at a time, not more than that. And this is my most favorite, but it's also very high in fat, इसलिए ये तो और भी ज़्यादा कम खाना ज़रूरी है. But I need to put these somewhere, so I'm just putting all of these together in this dabba. I'll just show you the most satisfying part of making this box. पहले तो ये हो गया ना.
and it's all mixed up. And trust me, this is the perfect meetha that you would ever want to have. Just open this up when you're feeling like आपको कुछ मीठा खाना है बड़ी ज़ोर से, and just take like a handful. और मुट्ठी भर के मतलब यही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता. हेलो. सो मैंने आप लोगों के कल बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे एंड आई थॉट कि मैं रोज़ अपनी वीडियोस के अंदर एक Q&A सेक्शन क्यों नहीं रखती जिसके अंदर आई रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ योर कमेंट्स. एंड सरप्राइजिंगली हाफ ऑफ योर कमेंट्स वर लाइक इतनी जल्दी ख़त्म हो गया व्लॉग. 26 मिनट का व्लॉग यू गाइस, 26 मिनट का व्लॉग. हाउ कैन यू गाइस से फ़ौरन ख़त्म हो गया. So I've just come out in the sun for a while to get my vitamin D. और बस इसके बाद थोड़ी सी वॉक शॉक करूँगी. But mostly I've come out to answer a few of your questions. So in the laser vlog मुझे एक question आया था. No, it was not an offensive one. It was a very general one. जिसने मुझे भी थोड़ा सा सोच में डाला था. वो ये था कि हम सबके लिए नेचुरल है हेयर ग्रोथ होना, तो हम इतना क्यों दौड़ते हैं इनको रिमूव करने के पीछे और लेज़र करने के पीछे. मतलब वैक्सिंग है, रेजरिंग है, थ्रेडिंग है, इतने सारे ऑप्शंस है. बट नाउ यू आर गोइंग फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव वन एंड द मोस्ट पेनफुल वन, बट लाइक अ मोर परमानेंट वन. तो व्हाई आर women doing this in general, or you know why am I doing it? तो मैं दूसरे लोगों का तो बिल्कुल नहीं बता सकती, बट आई कैन श्योरली लेट यू नो कि मेरी क्या वजह है. अब ऑब्वियसली बिल्कुल फैक्ट्स की तरह बता रही हूँ दैट माई स्किन इज़ वेरी फेयर एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज कैन सी इट. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ इनसिक्योर पॉइंट्स इन माई स्किन. ठीक है, अब मैं वो सारों के बारे में बात नहीं करूँगी, बट हैविंग स्ट्रॉबेरी स्किन एंड विजिबली ब्लैक hair on my skin is definitely one of them. So अब जब मैं कुछ भी पहनती हूँ ना, चाहे वो शलवार कमीज़ हो जिसमें 3/4 स्लीव्स हो या कुछ भी हो, मतलब मेरी स्किन नज़र आ रही हो, even though मेरी fingers, even my fingers are hairy. I'm not sure if you guys can see it, but I have full on hairy fingers. यानी कि if I'm not taking care of this, my arms start looking like a man's arms. And I don't feel confident with that क्योंकि मुझे बहुत शौक है to dress up. I love to wear t-shirts, I love to wear dresses, I love to wear whatever I feel comfortable in. And then all of a sudden, when this becomes something in my notice ना, मैं बहुत conscious हो जाती हूँ and I suddenly just start tugging and you know इस तरह होके, और मैं ज़रा uncomfortable होके pictures नहीं खिंचाऊँगी, हट जाऊँगी, दूर हो जाऊँगी and stuff like that. So I just want to feel really free. I love that feeling that I get on that fresh wax, you know, कि oh my god my skin is so nice and soft and smooth, और oh मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. So just to have that feeling for like a longer period of time is the reason that I opted for laser. तो ये दूसरा सवाल है या स्टेटमेंट है या क्रिटिसिज्म है, ये मुझे बहुत दफ़ा आ चुका है कि आप उर्दू में क्यों बात नहीं करती, आप अंग्रेज़ी में बात क्यों करती रहती हो, why you trying to act so cool and stuff like that. उसका ना एक जवाब बहुत बेसिक सा मैं दूँगी, और आई एम श्योर कि आप सब इस बात पे अग्री करेंगे कि हम ज़ुबान कोई भी बोले, हमारी ना हमेशा एक थिंकिंग लैंग्वेज होती है. यानी हम जिस ज़ुबान में सोचते हैं, या तो वो उर्दू होगी, या वो हमारी अपनी पर्सनल जो ज़ुबान है वो होगी उर्दू नहीं, सिंधी, सराइकी, पश्तो, पंजाबी, या तो वो इंग्लिश होगी, है ना. दैट्स ट्रू, राइट. और हम जब बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत कैजुअल होते हैं ना, हम अपनी थिंकिंग लैंग्वेज में बात करते हैं. तो मेरी जो थिंकिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है. अब ये तो हो गया कि मैं इंग्लिश में क्यों बात करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर मैं अंग्रेज़ी में बात करती हूँ और आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको पता है इससे आपको कितना फ़ायदा है अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहें. क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं जब बातें कर रही होती हूँ ना, मैं अपने हाथों से ज़्यादा बात कर रही होती हूँ अपनी ज़ुबान से ज़्यादा. ठीक है, और मैं जो बोलने की कोशिश कर रही होती हूँ वो सबको समझ में आ रहा होता है. ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहा होता, क्योंकि मैं बहुत आसान ज़ुबान में बात कर रही होती हूँ. सो अगर आपको मेरी कोई बात नहीं समझ में आ रही, आप उसको गूगल करें, उस वर्ड को गूगल करें, और अगर आपने स्पेलिंग गलत भी लिखी है, गूगल इज स्मार्टर देन यू. वो बोलेगा डिड यू मीन दिस, उसको क्लिक करो, सीखो, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओ. इंग्लिश में बात करना कोई बुरी बात नहीं है. हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में हर स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हर जॉब की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश. आप अपना जो फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, उन सब की मेन लैंग्वेज है इंग्लिश.
फूड पैंडा से खाना ऑर्डर करना है, फूड पैंडा इंग्लिश में। अगर आपको उबर या करीम मंगानी है वो इंग्लिश में है। अगर आपको यूट्यूब यूज़ करना है वो भी इंग्लिश में है। फेसबुक इंग्लिश में है। हर एप्लीकेशन, हर चीज़ जो हम आजकल करते हैं वो सब इंग्लिश में है। तो अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो आप उससे फ़ायदा उठाएं और आप सीखें, रादर देन थिंकिंग कि मैं यहाँ पे कूल बनने के लिए आई हूँ। नहीं, मुझे कूल बनने का कोई शौक नहीं है। कूल नहीं है, मैं बता चुकी हूँ इस वीडियो की शुरुआत में, कूल बिल्कुल नहीं है मैं। लेकिन सीखो यार, क्रिटिसाइज नहीं करो। चलो ये तो हो गई ये। इसके अलावा मुझे इतने सारे लेज़र रिलेटेड क्वेश्चंस ही आए थे जिसमें रिपीटेडली वही क्वेश्चंस पूछे जाए जा रहे थे। एक तो था प्राइस के बारे में, फिर एक था कि मैंने 3D लाइफस्टाइल को क्यों नहीं चूज़ किया, एंड देन द अदर वन वाज रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि भाई कैंसर हो जाता है इससे, इनफर्टिलिटी हो जाती है इससे, याड़ा याड़ा याड़ा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने 3D लाइफस्टाइल के साथ शुरू किया था, आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग बैक हियर टू कराची, ठीक है। तो मैंने अभी तक सिर्फ एक टेस्ट पैच करवाया था उनसे, एंड उसके फ़ौरन बाद ही आई हैड टू कम बैक ओवर हियर। तो आई डिडंट रियली हैव एनी प्रॉपर ट्रीटमेंट डन बाय देम। वो मैंने प्रॉपरली इस दफ़ा आकर यहाँ डॉक्टर नाखुदा से करवाया, उससे पहले मैंने नहीं करवाया था। सो नाउ कमिंग टू द प्राइसेस। तो अगर आप कराची में ही रहते हैं और आपको डॉक्टर नाखुदा के पास ही जाना है, सो दे सॉ माई वीडियो एंड दे वर सो स्वीट टू कॉल मी अप एंड टेल मी दैट इफ समवन कम्स फ्रॉम योर रेफरेंस वी वुड लव टू गिव देम अ डिस्काउंट, और हम उनको पैकेजेस बना कर देंगे एंड वी विल अकोमोडेट देम द बेस्ट वे पॉसिबल बिकॉज यू रिकमेंडेड अस सो हाईली। सो दैट्स रियली स्वीट ऑफ देम। तो अगर आपको प्राइसेस जाननी है आप उनको फ़ोन करें, आप उनसे डिटेल्स लें, पूछें। अब ये सारी जो डिटेल्स थी कैंसर, इनफर्टिलिटी, याड़ा याड़ा याड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बना के अपलोड की है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड वॉच इट। सही है, उसके अंदर वो सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। प्राइसेस क्या होती हैं इनकी, हाउ पेनफुल इज़ इट, कैंसर, PCOS, बेनिफिट्स, ला 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 ला, सब कुछ। यू कांट इवन इमेजिन कितने सवाल मैंने पूछे थे। आई थिंक आई लिटरली ड्रेन्ड द डॉक्टर। सो आपको वीडियो जाकर देखनी चाहिए, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो चेक इट आउट। तो भाई आज के लिए इतने ही सवाल। इतना मुझे मज़ा आता ना यहाँ के बैठने का। हाय ठंडी ठंडी हवा, बजाय कि मैं वॉक करूँ अभी, थोड़ी सी अपनी सुस्तियाँ मारूँ, मैं यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ आंटियों की तरह, फुल ऐसे खेत देख रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, बाग। ये देखें ज़रा, ये मैं देख देख के खुश हो रही होती हूँ। कोई हाल नहीं है मेरा, ज़ीरो हाल। सो आज किचन में बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े। नॉट श्योर इफ दे आर वेरी कॉमन इन योर हाउस और नॉट, बट दे आर सुपर कॉमन इन आवर हाउस। सो दिस इज हाउ दे आर मेड। दे आर वेरी सिंपली डन। ऐसे एक ब्रेड का पीस लेके बेसन में डालते हैं एंड देन वी जस्ट पुट इट इनटू द पैन लाइक दैट. And they are the yummiest pakoras you'll ever have. Yum. So Dadi is now running away because she has an iftar party to go to. Madam ki bahut demand hai. Mama, please let me see how you look. I want to show everybody how you look. Idhar mudhe. So she is wearing this brown dress, so beautiful, matching. Mama apna wo dikhaye bag. With her matching brown bag, mashallah, and her matching brown shoes. Mama, you look like a rock star. No, just accidentally it's matching. Nahi, Mama, you look very pretty. Okay, Allah Hafiz, have fun. So this is the time before iftar right now. Usually मैं इस टाइम पे फिल्म नहीं कर रही होती, लेकिन मैं इधर आई हूँ ये कहने के लिए कि दादी जान मुझे हमेशा बताती हैं कि असर से लेकर मगरिब तक एक ऐसी घड़ी होती है जो कबूलियत की घड़ी होती है। तो अगर आप इसमें कुछ भी मांगेंगे वो कबूल होगी। तो फ़िलहाल वी ऑल नो हाउ बैड द सिचुएशन इज़ विद दिस पेंडेमिक एंड हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग इफेक्टेड। तो अपने लिए तो दुआ मांगना ही मांगना, लेकिन बाकी जो लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनके लिए भी मांगना, जो हमारे मुल्क में सिचुएशंस हो रही हैं उनके लिए भी ज़रूर मांगना ताकि वो कबूल हों, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन बिकॉज नाउ इट्स गोइंग टू बी इफ्तारी टाइम इन अ लिटिल बिट, और मुझे अब अपनी खुद की पर्सनल दुआएं करनी है, एंड देन आई एम गोइंग टू कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।